Hello students, I once again welcome you all on my YouTube channel, and today we will move ahead in our chemical thermodynamics. Up till the last video we have covered the bond dissociation. In the last video, we have seen about the standard enthalpy of combustion and standard enthalpy of formation. Okay, and we have seen about how to write the reactions for the formation as well as for the combustion. Now, in today's video, we will move to the next topic, that is the bond enthalpy. Okay, so first let us understand what do we mean by the word bond enthalpy. We all know the meaning of this word enthalpy. Okay, enthalpy we all know. Enthalpy means what? It is nothing but the heat content for a reaction or for a process, anything. Okay, heat content which is taking place at a constant temperature and constant pressure. So that is nothing but the enthalpy. Now in this case we have to study about the bond enthalpy. Means whenever a bond is broken down or whenever a bond is formed, then obviously for the formation of the bond or for breaking down of the bond, energy is needed. And in thermodynamics we are talking about the energy in the form of heat and work. So when we are talking about the bond enthalpy, means the energy content is in the form of the heat. And so whatever amount of heat is required to break a bond or to form a bond, that is nothing but the bond enthalpy. Okay, have you got it? सिंपल है इसका मीनिंग. इसका बोलना है, वी ऑल नो कि एंथैल्पी मतलब क्या है? हीट कंटेंट. हीट कंटेंट यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? बॉन्ड एंथैल्पी. तो अब जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होगा या हम कोई बॉन्ड बनाएंगे तो उसके लिए क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी. और हमने थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या पढ़ना है? एनर्जी हमने पढ़नी है इन टर्म्स ऑफ हीट एंड वर्क. और यहाँ पर अगर हम एंथैल्पी की बात करें मतलब हमारी एनर्जी किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में. सो whatever amount of heat is required to make a bond or to break a bond, that is nothing but the bond enthalpy. Okay, so whenever a bond is formed or bond is broken down, then what do you say? What will happen? The heat energy will be delta H, the value of the enthalpy. Delta H की value positive रहेगी. कब रहेगी? जब bond form होगा या negative रहेगी. Okay, तो अब क्या होता है? जब हम बॉन्ड को फॉर्म करते हैं तब कम एनर्जी लगती है या बॉन्ड को ब्रेक करते वक्त कम एनर्जी लगती है? यस, क्या है यहाँ पर? जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि whenever we are breaking a gaseous molecule, अगर हम कोई gaseous molecule को ब्रेक करना चाहते हैं, now we know that ये हाइड्रोजन जब gaseous फॉर्म में in the form of H2 है तब वो क्या है? एकदम स्टेबल है. ओके, इट इज स्टेबल. अब अगर मुझे इसमें ब्रेक करना है मतलब इन दोनों के बीच का ये जो दो हाइड्रोजन दे आर अटैच्ड विद अ कोवैलेंट बॉन्ड. यस, इनके बीच में क्या है? एक कोवैलेंट बॉन्ड है. तो अब अगर मुझे ये कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है तो मुझे क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी. सो एनर्जी लगेगी मतलब क्या है कि सिस्टम एनर्जी अपने पास लेगा. अगर सिस्टम हीट ले रहा है, सिस्टम हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ले रहा है और यहाँ पर इसको ब्रेक कर रहा है दो एटम्स में, देन इन दिस केस डेल्टा एच जो है द एंथैल्पी वो क्या रहेगी? पॉजिटिव. यस, positive. Why? Because the system is absorbing the heat and that heat is the energy in the form of the heat is now used up to break this covalent bond. And this is nothing but the bond enthalpy. This enthalpy is called as the bond enthalpy. Okay. So if we want to define this bond enthalpy, then we can define it as, so the enthalpy change required to break a particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecule to produce gaseous atoms is called bond enthalpy. Okay, so this can be defined as जो enthalpy हमको लगी मतलब the amount of heat लग रहा है किस क्या change करने के लिए? तो enthalpy change required क्या करने के लिए? To break a particular covalent bond. To break a particular covalent bond. We all know that covalent bond is what bond? Which bond? The one which is formed by sharing of the electrons. Okay. So जब ये ऐसा bond जो कि
इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना हो, ऐसे बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो जो एंथैल्पी चेंज रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। लेकिन हम यहाँ रिएक्शन किसके लिए पढ़ेंगे फिर से, फॉर 1 मोल। ओके, सो द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecule। gaseous molecule में का जो बॉन्ड है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। gaseous molecule हमने कितना लिया है, 1 मोल। so this is your H2 gaseous, this is 1 mole of gaseous molecule when the bond, the covalent bond, अब ये जो है इसके बीच में this is nothing but the covalent bond। तो when we break this covalent bond, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टू प्रोड्यूस गैसियस एटम्स। अब इसमें से हमको क्या मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे एंड दे विल आल्सो बी इन द गैसियस फॉर्म ओनली। सो द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड in 1 mole of a gaseous atom to produce the gaseous atom is called the bond enthalpy। okay, or in this case the bond enthalpy will be positive and the value of delta H for this reaction is 46 kilojoules। okay, 436 kilojoules। similarly we'll take one more example। if I want to break a bond between HCl, okay, again in between HCl there is a covalent bond, we are taking 1 mole of HCl and this is suppose in the gaseous state। okay, whenever it is stable form, its stable form is in the gaseous state। so this HCl, when the bond in between this HCl is broken down to produce the atoms, hydrogen atom and chlorine atom in the gaseous state, in this case the bond enthalpy, standard bond enthalpy is 431.9 kilojoules per mole। okay, so this is another example of bond enthalpy when this bond again is broken in between the HCl। we are just talking about the ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, कितनी हीट जो लग रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ रेडिकल्स हम लोगों ने क्या किया, आप सोचेंगे कि ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये तो H प्लस और Cl माइनस में प्रोड्यूस होता है, ये तो मैम ने गलत लिख दिया है। बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हेनेवर, अब ये जो आयन फॉर्मेशन से पहले यहाँ पे अगर सिर्फ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जा रहा है, क्लोरीन एज इट इज रह रहा है, मीन्स व्हेन सिर्फ ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा इसमें का, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, 431.9 kilojoules per mole, and this is nothing but called as the bond enthalpy। means the enthalpy change taking place when 1 mole of gaseous atom or the covalent bond in 1 mole of gaseous atom breaks down to produce the atoms। okay, to produce the atoms or the radicals is called as the bond enthalpy। okay, so this is called as the bond enthalpy। नाउ ये तो सिंपल सी बात हो गई कि अगर हम लोग H2 ले ले, Cl2 ले ले, HCl ले ले, हर किसी में क्या होगा, इफ वी कंसिडर दीज एग्जांपल्स, H2 ये हम लोगों ने भी देखा, ठीक है, एक ही बॉन्ड आ रहा है। इफ आई कंसिडर अबाउट Cl2 देन अगेन ओनली 1 बॉन्ड, HCl 1 बॉन्ड, बट देयर आर सम कंपाउंड्स व्हिच हैव द मोर देन 1 बॉन्ड, या तो मोर देन 1 टाइप ऑफ बॉन्ड होंगे या एक ही टाइप के एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे। तो तब जो चेंजेस आएंगे, जो बॉन्ड में जो एंथैल्पी में चेंज आएगा वो हम उसको देखेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ द एंथैल्पी चेंज इन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो लेट्स मूव टू दिस टॉपिक, द एंथैल्पी चेंज इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो लेट अस टेक वन now understand what do we mean by the bond enthalpy in polyatomic atom। तो सपोज अगर मैंने एक सिंपल एग्जांपल ले लिया वाटर का, ओके, नाउ ये वाटर का मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इन दिस वे। ओके, मीन्स व्हाट, देयर आर 2 bonds, there are 2 bonds, one OH bond and another OH bond। so now when this H2O breaks down into, कितने इसमें ब्रेक हो जाएगा, इसमें आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम और 1
ऑक्सीजन एटम, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा. सो इन दिस केस द delta H for this reaction or the bond enthalpy for this reaction is 927 kilojoules per mole. ठीक है, ये है 927 kilojoules per mole. So this is the bond enthalpy for water molecule. मतलब इसका बोलना क्या है कि जब एक पॉलीएटॉमिक एटम जब ब्रेक होगा तो ये है उसकी सपोज बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है, अब ये पॉलीएटॉमिक एटम ब्रेक किस तरह से होगा? यस, अब ये ऐसे तो नहीं ब्रेक हो जाएगा, H2O ले लिया और 2 हाइड्रोजन ये अलग निकल गया और एक ऑक्सीजन अलग निकल गया. नहीं, एट ए टाइम क्या होता है, सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, हमने हीट प्रोवाइड की, वो फर्स्ट जो हीट है वो कहाँ जाएगी, पहला एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी. उसके बाद भी अगर हम हीट कंटिन्यू करते हैं देना इन द फॉर्म ऑफ मींस वी आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी, देन द सेकेंड बॉन्ड will get broken down. तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये जो प्रोसेस है आपकी ब्रेकिंग ऑफ H2O, it takes place in 2 steps. It takes place in 2 steps means what? Means this water molecule, out of this water molecule, first what will happen, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन एंड विथ 2 हाइड्रोजन एटम, इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा. एक बॉन्ड ब्रेक होगा मतलब क्या हो गया, we'll get 1 hydrogen atom in the gaseous state plus 1 OH. yes, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फिर ये जो OH है, अब ये जो बचा हुआ है इसमें से भी ये बॉन्ड सेकेंड स्टेप में ब्रेक होगा. ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप. और सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, अगेन दिस OH will get broken down into O gaseous and hydrogen gaseous. Okay, and the enthalpy change, the delta H for this first reaction, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है 499 kilojoules per mole. It requires how much energy? Okay, the first bond breaking requires 499 kilojoules per mole. और वही यहाँ पे जब हम सेकेंड वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं OH में का जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है and we are getting oxygen atom and hydrogen atom, in this case the delta H means the change in the enthalpy is the energy change is 428 kilojoules per mole. Okay, and if we add these two energies, means the energy required to break the first bond and the energy required to break the second bond, the answer comes out to be 17, 12 and this 927 kilojoules per mole. Means this is same as this. Yes, means it is nothing but ये क्या है, this is the total energy required to break a bond in the H2O, and this is the first step, the amount of the energy required to break the first OH bond and then the energy required to break the second OH bond. अब ये यहाँ ऐसा डिफरेंस क्यों है, दोनों बॉन्ड्स तो सेम है, ये भी OH बॉन्ड है और ये भी OH बॉन्ड है, तो एनर्जी अलग अलग क्यों लग रही है? Why? Because जब हम पहला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पर जब हमने पहला बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड सपोज ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, तो पहला जब बॉन्ड ब्रेक किया तब क्या था, जो आसपास इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन थी दैट वाज डिफरेंट. और जैसे ही मैंने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो अब पहले ये तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन के पास थे पहले से, ठीक है. अब यहाँ पे उसने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है और एक इलेक्ट्रॉन इधर ये बॉन्ड में शेयर्ड है. तो अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. ओके, मीन्स नाउ इन दिस केस ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये हाइड्रोजन अलग हो गया अपना इलेक्ट्रॉन लेके. ओके, तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है दैट इज मच डिफरेंट. ओके, सो इन ऑर्डर टू, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो ऑब्वियसली जो एनर्जी का कंटेंट है, एनर्जी जो रिक्वायर्ड रहेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो भी चेंज हो जाएगी. ओके, सो इन दिस केस इसीलिए यहाँ पर क्या है, दोनों की एनर्जी चेंजेस जो है, दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट लग रही है. ठीक है, बट हमें कैसे पता चलेगा? सपोज आपको एग्जाम्पल में कुछ दे दिया है, यही दे दिया एग्जाम्पल, चलो ठीक है, आपको दे दिया है कि इट इज आस्क्ड दैट कि H2O, okay, H2O get completely decomposed into 2 hydrogen and 1 oxygen, and delta H for the reaction is 927 kilojoules per mole.
ठीक है. So if it is asked that how much energy is required to break one OH bond, if it is asked that how much energy is required to break one OH bond, तो अब तक हम क्या करेंगे, we are just going to take the, इसका ये जो भी है हमारा, जो भी फर्स्ट के लिए जितनी एनर्जी लग रही है, सेकंड के लिए जितनी एनर्जी लग रही है, या हमारे पास अगर पूरा टोटल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक एन एवरेज ऑफ इट. एवरेज ऑफ इट कैसे लेते हैं हम, कि एवरेज इन दोनों का कितना हो गया, कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज, की ये इतनी रिक्वायर्ड रहती है. तो अगर इन दोनों बॉन्ड्स के लिए हमको एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 499 प्लस 428 डिवाइडेड बाय 2. यस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 927 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट विल कम आउट टू बी 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and then 2 5s are 10, 463 किलो जूल पर मोल. तो इसमें का एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज 436.5. तो अगर आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है कि पूरा बॉन्ड दिया हुआ है, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर देयर. मतलब अभी जैसे यहाँ पर ये है एक, ठीक है, तो अब ये जो OH बॉन्ड है, यहाँ पे कितने हैं, 2 OH बॉन्ड है. तो ये दोनों OH बॉन्ड के लिए अगर 927 किलो जूल पर मोल लग रही है, तो एक के लिए कितनी लगेगी, हम क्या करेंगे, 927 डिवाइड बाय 2. सो वील गेट द बॉन्ड एनर्जी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी टू ब्रेक 1 OH बॉन्ड. ओके, अब ये जो एनर्जी है 1 OH बॉन्ड ब्रेक करने की, अब ये H2O के लिए इतनी है. लेकिन सपोज अब मैं सेकंड एग्जांपल ले लूं, अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल या इथिल अल्कोहल मैंने ले लिया. ठीक है, सपोज हम लोगों ने दूसरा एग्जांपल ले लिया, मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, जिसमें भी एक और OH बॉन्ड है, ऐसा अगर हम लोग ले लेते हैं. ठीक है, सपोज हमने ले लिया CH3OH. तो अब इसमें भी क्या, कौन कौन से बॉन्ड है, ये जो कैसे अटैच है, CH3 इस तरह से है एंड OH. ठीक है, यस. तो अब इसमें भी क्या है, इसमें भी OH बॉन्ड है. तो जरूरी नहीं है कि हमको यहाँ पर OH बॉन्ड के लिए अगर 436 किलो जूल पर मोल लगी है तो वही चीज यहाँ पर भी रहेगी. इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी. क्यों, बिकॉज यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज है, और इस O के साथ क्या अटैच है, यहाँ पर मीथेन, मतलब यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर चेंज है. तो जिस तरह का एटमॉस्फेयर रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही एनर्जी रहेगी. यस, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए हम लोग. सपोज आप किसी दोस्तों के ग्रुप में चले गए. ठीक है, आप क्लास में नए नए आए हो एंड आपको एक अच्छा सा ग्रुप जो कि थोड़ा सा बहुत दबदबा है, जिनका कॉलेज में या कहीं और दबदबा है, ऐसे किसी ग्रुप ने आपको अपने पास अट्रैक्ट कर लिया. ठीक है, अब ये ग्रुप के पास आप आ गए, मतलब अब क्या हो गया, इन लोगों ने स्ट्रांगली आपको खींच के रखा हुआ है. ठीक है, अब वहां पर आपको रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. ठीक है, आपकी कोई इच्छा नहीं है ऐसे ग्रुप में रहने की, बिकॉज आपका नेचर उनसे मैच नहीं कर रहा है. ओके, यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, यहाँ नेचर अगर मैच नहीं हो रहा है तब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे आपकी इच्छा है कि आप यहाँ से बाहर चले जाएं. ठीक है, तो जैसे ही एक कोई दूसरा थर्ड पर्सन आके आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेगा और आपको थोड़ा सा भी लगेगा कि आगे वाला यार इनसे तो अच्छा ही है, तो आप क्या करोगे, आप जल्दी से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे और यहाँ पे बॉन्ड बना लोगे. यस, ये आपने कर लिया. क्यों, बिकॉज आगे वाले, ठीक है, जिनसे आपने पहले दोस्ती की थी, उन्होंने आपको इजीली जाने की परमिशन दे दी. जब आपको इजीली जाने की परमिशन दे दी जाएगी, मतलब कौन इजीली परमिशन देगा, जो पॉजिटिव एटीट्यूड का होगा कि चल ठीक है ना, उसको नहीं पसंद आ रहा अपने साथ रहना तो चल जाए. सो वो कब करेंगे, जब यहाँ पर पॉजिटिविटी रहेगी. तो अब ये पॉजिटिविटी अगर रहती है तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो थर्ड पर्सन आया है उसको एनर्जी एकदम कम लगेगी. वही अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव लोग हैं, मतलब सब निगेटिव लोग हैं, एकदम गुंडा टाइप वाले लोग हो गए सपोज. ठीक है, तो अब ये लोग क्या करेंगे, नहीं, इनके ईगो हर्ट हो जाएगा अगर आपने इनकी दोस्ती तोड़ दी तो अब ये क्या करेंगे, आपको अपनी तरफ खींच के रखेंगे. और ऐसे केस में अगर थर्ड पर्सन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपने साथ लेना चाहता है, आप छोड़ना भी चाहते होंगे, तब भी आप क्या कर पाओगे, इट विल रिक्वायर अ मच मोर एनर्जी टू गेट रिड ऑफ दैट एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव. तो यहाँ पर अगर मोइटी कौन सी है, ये आप किस तरह
तरह से कौन सी चीज के साथ अटैच है उसके ऊपर आपकी हीट कंटेंट डिपेंड करेगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर अटैचमेंट होगा उतना ही बॉन्ड ब्रेक करने में डिफिकल्टी होगी, और जितना आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ होंगे वहां पर बॉन्ड ब्रेक करना इजी हो जाएगा। तो अब आप बता सकते हो मुझे कि इन दो केस में क्या होगा। यहाँ पर OH बॉन्ड यहाँ पर भी ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर भी ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ का जो OH बॉन्ड था वो इस टाइप का था, HOH, ठीक है। तो आपने पहले ये जो OH बॉन्ड है इसको ब्रेक किया। ये किसके साथ था? हाइड्रोजन के साथ, जो कि पॉजिटिव है, यस। उससे कार्बन थोड़ा सा नेगेटिव है, यस, उससे थोड़ा सा नेगेटिव है। तो अब क्या होगा, मतलब एनर्जी यहाँ पर कम लगेगी और यहाँ पर ब्रेक करने में ज्यादा लगेगी। इस तरह से हर एक टाइप के बॉन्ड के लिए कौन सा एटम अटैच है ये आपको देखना है, और उस एटम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना एंथैल्पी है। अब इस चैप्टर में आपको ये लोड लेने की जरूरत नहीं कि आपको एंथैल्पी कितना होना चाहिए, ये आपको कहीं लिखना नहीं है आपको, या ये याद नहीं करनी है फिगर्स आपको कि कार्बन के साथ है तो बॉन्ड एंथैल्पी कितना होगा। यू डोंट हैव टू मेमोराइज दैट, सब कुछ आपको दिया हुआ रहेगा। बट मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये जो बॉन्ड एंथैल्पी क्यों चेंज हो रही है। अगर एक ही OH टाइप का बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी 431 है, यहाँ पर जाने के बाद उसकी कुछ और 524 लग रही है, तो ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि किस एटमॉस्फेयर, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर है वो पर्टिकुलर एटम का जिसको आप ब्रेक करना चाह रहे हो, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक एटम जो है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर जो है वो अफेक्ट करेगा एंथैल्पीज को। ओके, तो कितनी एंथैल्पी किसके लिए लगेगी, किसके लिए कम लगेगी, किसके लिए ज्यादा लगेगी, दिस ऑल डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो let's now move to the next topic, that is the enthalpy of the reaction. ये तो हम लोगों ने देख लिया, एक सपोज एक कोई भी एटम है कि उसका बॉन्ड एंथैल्पी ब्रेक होता, मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एंथैल्पी में क्या चेंजेस आएंगे। अब अगर हमें रिएक्शन, पूरी रिएक्शन के लिए बॉन्ड एंथैल्पी स्टडी करनी है तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, लेट्स सी दैट। Okay, so let's move to the next, that is bond enthalpy and reaction. Okay, in the last video we have seen in the bond formation that whenever we are studying about the bond enthalpy, हम लोग bond enthalpy कैसे करते हैं? This is nothing but the enthalpy change in the product side minus the reactant side. Yes, ये हम लोगों ने last time देखा था, product side minus reactant side. Okay, but whenever we are considering the bond enthalpy in chemical reactions, there we are going to consider the bond enthalpy for a chemical reaction as the summation of delta H of reactant minus product, delta H of summation of delta H of product. हम इसको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेंगे, किसके लिए, जब भी हमें बॉन्ड एंथैल्पी स्टडी करनी है। अब ऐसा क्यों? मैंने आपको क्या बताया अभी कि बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी कम लगेगी। किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा लगेगी। आपके पास 2 चॉकलेट्स है और मैं आपको मांग रही हूँ उसमें से, ठीक है, तो मुझे एनर्जी थोड़ी यूज करनी पड़ेगी, या तो आपको कुछ मस्का लगाना पड़ेगा, कुछ तो एनर्जी मुझे वेस्ट करनी पड़ेगी ताकि मैं आपसे वो 2 में से 1 चॉकलेट ले सकूं। लेकिन वही अगर मुझे आपको देना है तो मुझे भी कोई एनर्जी नहीं लगेगी और आपको भी लेने में कोई एनर्जी नहीं लगेगी। मीन्स व्हाट, व्हेनेवर देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन द एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू when there is a bond cleavage. तो अब अगर रिएक्शन होती कैसे है, कोई भी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, सपोज एक रिएक्शन ले लेते हैं हम H2 plus I2, ठीक है, ये दोनों को मुझे रिएक्ट करना है। यहाँ पे अब मैंने 2 रिएक्टेंट्स ले लिया। अब तक हम लोगों ने फॉर्मेशन में, कंबस्शन में सिर्फ एक ही कंपाउंड देखा था। ओके, तो अब यहाँ पर अगर मुझे इन दोनों के बीच में रिएक्शन करनी, तो ये रिएक्शन कैसे होगी, पॉसिबल कैसे होगी, जब ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों आयोडीन, ठीक है, ये दोनों ऑलरेडी दे आर इन द स्टेबल स्टेट, दिस इज ऑल्सो गैसियस स्टेट, दिस इज ऑल्सो गैसियस स्टेट। ओके, सो दे आर ऑलरेडी स्टेबल। बट अब अगर मुझे इन दोनों में रिएक्शन करनी है तो क्या होगा, रिएक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ का जो बॉन्ड है दोनों के बीच में का हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और 2 आयन, इनके बॉन्ड को मुझे क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। यस, तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों भी मोइटी अनस्टेबल हो जाएगी और वो स्टेबिलिटी की तरफ
भागेगी, ठीक है, वो स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेबल होने के लिए दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा HI, एंड सिंस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 आयोडीन है तो ये बन जाएगा 2HI। यस, तो ये हमारी इस तरह से केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। बट अब इस रिएक्शन में ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तब एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा लगेगी। मींस जो रिएक्टेंट साइड का एंथैल्पी है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट। इसलिए जब भी हम डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पीज पढ़ेंगे किसके लिए, for a chemical reaction, then there we are going to take the summation of delta H of reactant minus summation of delta H of product. Okay, तो अब अगर मुझे इस पे अप्लाई करना है, this is my reaction H2 plus I2 giving twice HI, and if I want to study the delta H for this reaction, okay, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में क्या है, H2 भी है और I2 भी है, ठीक है, और बॉन्ड कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक HH बॉन्ड और एक II बॉन्ड। मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एंथैल्पी लगा, प्लस इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एंथैल्पी लगा, और इसको बनने के लिए कितना एंथैल्पी लगा, ये आ जाएगा मेरा यहाँ पर डेल्टा H। ओके, तो अब हम एक एक का लिखेंगे। तो पहले है हमारा समेशन ऑफ डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम समेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, HH, तो पहला हमारा बॉन्ड क्लीवेज होगा डेल्टा H ऑफ HH, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी फॉर दिस, प्लस डेल्टा H ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द टू ब्रेक द सेकेंड बॉन्ड दैट इज द II बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया मेरा समेशन ऑफ डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट, माइनस मुझे क्या करना है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में तो यहाँ पर एक ही चीज है, क्या है यहाँ पर, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI। HI यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यस, तो HI फॉर्म हो रहा है, और कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, 2, so 2 into this, okay, तो this will be my the enthalpy for this reaction। मतलब जब भी हम बॉन्ड एंथैल्पी कंसिडर करेंगे और द एंथैल्पी फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन लेंगे, तब हमें क्या करना है, एक एक बॉन्ड उसमें का स्टडी करना है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एंथैल्पी फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ओके ओके, सो लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है, अब हम मीथेन मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल। अब अगर इसकी हम रिएक्शन देखें, अब इस ये जो मीथेन है, मीथेन में क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, 1 2 3 4। एक्चुअल जो मीथेन का स्ट्रक्चर है इट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। बट मैंने अभी सिंप्लिसिटी के लिए आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, ये है मेरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। बट हमें यहाँ पे फिलहाल सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे बॉन्ड्स के बारे में स्टडी करना है, तो हम बहुत ज्यादा उसके डिटेल स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे, विल जस्ट स्टडी अबाउट द बॉन्ड्स। अब ये जो CH4 है, नाउ दिस CH4 अगर इसमें का बॉन्ड क्लीवेज होता है तो यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज कितने, मैंने क्या बोला है कि पूरे चारों के चारों बॉन्ड यहाँ पर एक साथ ब्रेक नहीं होंगे। मतलब क्या होगा, सबसे पहले ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से, ओके। तो सपोज फर्स्ट वाली रिएक्शन ये जो है स्टेप्स हो जाएगी मेरी, स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, ये CH4, ठीक है, CH4 इन द गैसियस स्टेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, सबसे पहले एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब अब क्या बचेगा, अगर मैंने ये एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो क्या बन जाएगा अब यहाँ पे, CH3 plus H, yes, all are in the gaseous state, okay। Now if suppose in this case the value of bond enthalpy is suppose 427 किलो जूल्स, ठीक है, इस स्टेट में अगर 427 किलो जूल्स है, देन सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप 2 में अब ये जो CH3 बचा है हमारा, दिस CH3 विल अगेन, अब एक और ये जो CH3 बचा है इसमें से और एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, एक और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बचेगा अब हमारे पास, CH2 प्लस हाइड्रोजन इन द gaseous state, yes, and suppose delta H for this is 439 kilojoules per mole, okay।
किलो जूस पर मोल। दिस ऑल जो भी वैल्यूज है ये सभी उनके इलेक्ट्रॉनिक मोइटी के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए ये एवरी टाइम क्या होगा, जरूरी नहीं है कि एक CH बॉन्ड के लिए जो एनर्जी लग रही है ब्रेक करने के लिए वही एनर्जी सभी में लगेगी। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। ओके, नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा, अब हमारे पास ये CH2 बचा है, सो CH2 in the gaseous state will again undergo cleavage to form the CH plus hydrogen। ये एक और बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब बचा क्या हमारे पास, CH और हाइड्रोजन, both are in the gaseous state। okay, and in this case delta H is 452 kilojoule per mole। this much amount of heat is required। then अगेन इन द लास्ट स्टेप क्या होगा, अब स्टेप 4 लास्ट बचा हुआ है हमारा CH। दिस CH बॉन्ड विल अगेन गो इनटू क्लीवेज एज फॉर्मिंग C कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड द डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन विल बी 347 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, इतनी एनर्जी लग रही है। तो अब इसका मतलब इस पूरे CH4 को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लग गई, मतलब ये पूरे का क्या करेंगे हम, ये पूरे को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इतनी एंथैल्पी चेंज और इतना बॉन्ड एंथैल्पी लगेगा इन ऑर्डर टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द गैसियस मीथेन मॉलिक्यूल। ओके, सो दिस विल बी 9 and 7 हो गया, 16 17 18 18 25 to carry। okay, so it will be now 4 plus 3 7 7 plus 5 12 13 14 15 16। okay, carry 1 4 8 12 16, so 1665 kilojoules per mole of energy is required। okay, and average bond enthalpy क्या हो जाएगा इसका, we are going to just divide it by 4। एक बॉन्ड के लिए, अगर 4 बॉन्ड के लिए इतनी लग रही है और सभी एक ही टाइप के बॉन्ड है इसलिए आई एम डिवाइडिंग इट बाय 4। ओके, और एस अगर एक ही मॉलिक्यूल है उसमें 2 टाइप के बॉन्ड्स है, ठीक है, 2 अलग अलग टाइप के अगर बॉन्ड्स हैं तब हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ सिंस ऑल द 4 आर सेम सो आई एम डिवाइडिंग इट बाय 4, सो इट इज नथिंग बट 4 4s are 16, 4 1s are 4, 4 6s are 24, then 4 2s are 8, 4 5s are 20, इतना किलो जूस पर मोल। so this is nothing but the amount of heat required to break one single average amount of heat required to break a single bond in the or to break the CH bond in the methane molecule। okay, so in this way you can find out the bond enthalpy for single substance। now we have also seen about the reactions also। so let us see one example of how to get the bond enthalpies or how to solve the numericals on such type of the whenever the reaction is given and bond enthalpies for different type of bond is given, then how we are going to solve it। okay, so let's see that। okay, suppose if the numerical is given like this, calculate the standard enthalpy of एक reaction दी हुई है आपको N2H4 plus H2 in the gaseous state, this is also in the gaseous state, gives you twice NH3, and if the value of delta H for the different type of bonds like NH, HH and NN is given। okay, bond enthalpies हमको different bonds के लिए दी हुई है और इस complete reaction की आपको bond enthalpy पूछी हुई है। okay, अब confuse नहीं होना है। हम लोगों ने लास्ट इसमें देखा था कि जब भी हम कोई reaction की bond enthalpy देखते हैं formation या combustion में, तब हम क्या करते थे, bond enthalpy निकालते वक्त हम क्या करते थे, delta H is equals to summation of delta H of product minus reactant। लेकिन जब हम रिएक्शन में बॉन्ड एंथैल्पी, जब वर्ड आपको बॉन्ड एंथैल्पी नहीं दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, या तो फॉर्मेशन दिया रहेगा या कंबशन दिया रहेगा, अगर ये दोनों भी वर्ड्स नहीं है और किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की आपको बॉन्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी पूछी हुई है और जिसमें आपको क्या दिया है, यू हैव बीन गिवन द bond enthalpies of different type of the bonds, तो तब आपको क्या करना है, you have to use this formula, that is the delta H for the reaction is the summation of delta H of reactant minus product। okay, so let us apply it now। in this case सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी किसी रिएक्शन का हमको स्टैंडर्ड एंथैल्पी अगर निकालने को कहा गया है, यू हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन इन सच अ वे दैट यू कैन ऑब्जर्व ईच एंड एवरी बॉन्ड इन इट। ओके, पूरे बॉन्ड्स के साथ उस रिएक्शन को लिखो ताकि न्यूमेरिकल कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। अब सबसे पहले यहाँ हमारी रिएक्शन क्या है, N2H4।
अब ये N2H4 का स्ट्रक्चर पहले निकालेंगे हम लोग। N2H4 मतलब N2 मीन्स दो नाइट्रोजन अटैच है आपस में, और H4 मतलब इन्हीं नाइट्रोजन्स के साथ हाइड्रोजन अटैच है। अगर आपने ये चीज प्रॉपरली लिख ली तो आपकी रिएक्शन या आपके न्यूमेरिकल में कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ओके, प्लस सेकंड क्या है H2। H2 मतलब ये हमारा H2 gives you twice NH3, तो 2 times NH3 मतलब 2 ले लेते हैं हम यहाँ पे, और NH3 को कैसे लिखेंगे हम NHHH, ये हो गया मेरा twice NH3। ओके, इस तरह से लिखने के बाद हमारे लिए एकदम सिंपल हो जाएगा ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अब स्टार्ट करते हैं। Now we have to find out the delta H standard enthalpy. Okay, we know that it is nothing but summation of delta H of reactant minus summation of delta H of product. Okay, ये चीज हमें पता है। Okay, now delta H of reactant में यहाँ पर क्या है N2H4 and H2। So in this case हमें क्या करना है, we have to observe all the types of bond, कि रिएक्टेंट साइड में कौन से बॉन्ड है और कितने बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर वी हैव टू कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी। तो हर एक बॉन्ड, ये यहाँ पर जितने भी बॉन्ड है सभी ब्रेक होंगे तब जाके ये स्ट्रक्चर चेंज होगा एंड यू विल गेट ट्वाइस NH3। यस, सो in order to break all the bonds, how much amount of heat is required, that we have to first calculate out। ठीक है, so first हम reactant ले लेते हैं, ये हमारा N2H4। अब इसमें कितने बॉन्ड है, एक NN वाला बॉन्ड है और 1NH, 2NH, 3NH एंड 4NH, मतलब 4NH टाइप के बॉन्ड्स है। ओके, तो मतलब ये पूरे टोटल मिला के इसमें कितने बॉन्ड्स हो गए, कौन कौन से, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 बॉन्ड्स है, जिसमें से हमारा एक अलग टाइप का बॉन्ड है और बाकी 4 सेम टाइप के बॉन्ड है। ओके, तो सबसे पहला क्या लेंगे हम कि NN बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ NN कितने हैं, ये 1 है, सो 1 इंटू डेल्टा H ऑफ NN। ठीक है, प्लस यहाँ पर दूसरा कौन सा टाइप का बॉन्ड है, NH टाइप का बॉन्ड, सो एंथैल्पी चेंज फॉर NH टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अब ये कितने बॉन्ड है, 4, सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे इंटू 4, प्लस दूसरा क्या है HH, सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HH बॉन्ड। ओके, तो अब यहाँ पे HH बॉन्ड हो गया ये, अब ये कितने हैं, ओनली 1, ये 1 ही है, सो 1 इंटू दिस, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट साइड का समेशन कंप्लीट। ओके, माइनस अब हमें क्या करना है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या है देखते हैं, प्रोडक्ट में क्या है 1 2 3, 3 टाइप के बॉन्ड है। 3 कौन कौन से बॉन्ड है, ये भी NH बॉन्ड, ये भी NH और ये भी NH, मतलब क्या हो गया 3 टाइप्स ऑफ NH बॉन्ड, और फिर यहाँ पर बाहर 2 भी है, मतलब 2 टाइम्स 3 बॉन्ड, तो कितने हो गए 6। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है 6 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड। ठीक है, आ गया, बस अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। सो लेट अस डू दैट। सो नाउ दिस देयरफॉर the standard enthalpy will be equals to 1 into, first है हमारा 1 into standard enthalpy of NN bond। NN bond हमें कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, मतलब 159। ठीक है, मैं किलो जूल पर मोल नहीं लिख रही हूँ बिकॉज ऑल हैव द सेम यूनिट किलो जूल पर मोल, और इसीलिए डेल्टा H भी हमारा क्या आएगा, किलो जूल पर मोल में, इसलिए हम लोग अभी फिलहाल यूनिट नहीं लिख रहे हैं। देन प्लस 4 इंटू अब क्या है डेल्टा H ऑफ NH बॉन्ड के लिए हमें दी हुई है वैल्यू 389। ठीक है, 389 प्लस 1 इंटू HH बॉन्ड, HH इज 435, ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस 6 इंटू डेल्टा ऑफ NH अगेन इज 389, सो 389। ठीक है, अब बस आपको सब कुछ कैलकुलेट आउट करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। तो चलो करके देखते हैं। अब दिस विल बी 1 इंटू 159 इज 159। ओके, प्लस
4 into 3 89, 4 9s are 36, 3 carry, 4 8s are 32 plus 3 35, 4 3s are 12, 13 14 15. So 1556 plus 435. ओके माइनस पहले हमने क्या किया, सब मल्टीप्लीकेशन कर दिया. ओके 6 9s are 54, 5 carry, 6 8s are 48, 48 plus 5, 48 49 50 53, 53 5 carry, 6 3s are 18, then plus 5, 18 plus 5 is 23. Okay, now first we'll add this up. 9 plus 6 15, 15 plus 5 20, carry 2, 5 plus 5 10 plus 5 15, carry 1, 1 plus 5 is 6, 6 plus 5 is 11, carry 1. So this will be 2, how to be 2150 minus 2334. Okay, so means we have to, this is plus into minus, so it will, we have to do the subtraction and we'll give the sign of the bigger number. In case we have to subtract and the answer will be of the greater number. So 2150 is smaller, 2334, so we have to subtract 2334 minus 2150. So it will come out to be 4810. So that will be minus 184 kilojoules per mole. Okay, is it simple? Just you have to calculate all the bonds. ये अगर अपने bonds, number of bonds में गलती कर दी तो आपका पूरा numerical wrong हो जाएगा. And this numericals comes for 3 to 4 marks. Okay, so it's just it is, I think I should say that इसे गवाना मतलब बहुत बेवकूफी की बात हो जाएगी, because everything is given. You have to just write down the equation. You have to just find out how many number of bonds are there and substitute and just do the plus minus. Okay, so it's as simple as it. So try to solve the numericals whenever it comes in board or in any other exams. Whenever the numericals are asked over it, it's these numericals are very easy type. Okay, so don't miss them out. Now let us move to let us see one more numerical of this type. Okay. Okay, now suppose some example of this type is suppose given, in which the reaction is given and the bond enthalpies of different bonds are given. Like let us read it. The enthalpy change of the following reaction: CH4 plus Cl2 gives CH3Cl plus HCl. Delta H for the reaction is minus 104 kilojoules. So they are asking us to calculate the CCl bond enthalpy, and the bond enthalpies are CH, CCl and HCl. मतलब आपको क्या किया हुआ है, bond enthalpies for different bonds it is given to you and they are asking you to find out the bond enthalpy for the CCl bond. मतलब यहाँ पे पूरी reaction की bond enthalpy already आपको दी हुई है and you have to just calculate out the bond enthalpy of one single bond. Okay, so for that same procedure. सबसे पहले हम क्या करेंगे, we are going to write down the reaction with its structure. Okay, so solution, let us solve it. So in this case the reaction is CH4 means CH4 can be written like this. Okay, I am not writing the tetrahedral structure, it has a tetrahedral structure, but यहाँ पर हमसे bond enthalpies calculate करना है तो हम एक simple bond का structure ले रहे हैं. Plus Cl2 means Cl giving you CH3Cl means C is attached with 3 hydrogen atoms and 1 Cl atom plus H and Cl. Okay, so in this case you have to find out the bond energy. मतलब हमें कौन सी bond enthalpy निकालनी है, ये CCl की bond enthalpy निकालनी है और बाकी सभी की bond enthalpies दी हुई है, reaction की भी bond enthalpy दी हुई है. Okay, now we know that the formula is delta H for the reaction is equals to summation of delta H standard enthalpies for the reactant minus the standard enthalpy of the summation of standard enthalpies of the product. Okay, so let us substitute. Now let us find out first. Let me keep this as, फिलहाल हम इसको ऐसे ही रखते हैं और पहले ये निकालते हैं. Okay, so summation of delta H of reactant. Now in this case there are two things in the reactant. Okay, सबसे पहला हमारा CH4. CH4 में क्या है, ये CH bond, one type of CH bond, ये भी CH bond, ये भी CH bond, ये भी CH bond. मतलब कितने CH bond हो गए, 1 2 3 and
4 CH bond. So here we will take 4 into delta H of CH bond. Yes, प्लस यहाँ पर क्या है, ये एक ही CCl बॉन्ड है, सो 1 into delta H of bond of CCl bond. ओके, ये हो गया मेरा रिएक्टेंट साइड खत्म, ये हो गया मेरा रिएक्टेंट माइनस summation of delta H of product. Now let us see what is there in product. Okay, so in the product there are 1, 2 and 3. 3 CH बॉन्ड है और एक CCl बॉन्ड है. ओके, एक CCl बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 3 into delta H, स्टैंडर्ड डेल्टा H फॉर CH बॉन्ड प्लस एक CCl बॉन्ड है, सो 1 into delta H ऑफ CCl बॉन्ड प्लस ये हो गया हमारा ये रिएक्टेंट. अब दूसरे रिएक्टेंट में यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही बॉन्ड है, दैट इज HCl, सो डेल्टा H ऑफ HCl. सो दिस इज आवर इक्वेशन. एक बार आपकी ये इक्वेशन राइट बन गई तो यहाँ पर मिस्टेक्स होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो डेल्टा H स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन. रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज गिवन टू बी -104 kilojoules per mole equals to bracket 4 into delta H of CH. So CH is 414. So 4 into 414 plus 1 into delta H of ClCl. ClCl is 243 plus bracket close minus 3 into delta H of CH. CH is 414 plus 1 into delta H of CCl. CCl is not given. Okay, so this we have to find out. So this is question mark for us. Plus 1 into HCl. So HCl is 431. Okay, now just find out. So this will be -104 is equals to, so first let us multiply all things. So this is 4 4s are 16, 4 1s are 4, 4 4s are 16. Sorry, 4 4s are 16, carry 1, 4 1s are 4 and here it will come 5. 1656 plus 243 minus 3 into 3 4s are 12, carry 1, 3 1s are 3 plus 1 4, 3 4s are 12, 1 2 4 2 plus delta H of CCl plus 431. Okay, so I am writing 431 over there and we'll keep over here. Okay, to make it easy. ठीक है, इसी को मैंने क्या किया, सिर्फ इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया और इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया. So this will be -104 is equals to, now add them up. 6 plus 3 is 9, 5 plus 4 9, 6 plus 2 8 and 1 minus, now let us add them up. So this will be 3, 4 plus 3 7, 2 plus 4 6, 1. Okay, minus, and this will also become minus delta H of CCl. Okay, now since we have to find the CCl and it is a negative sign, so if I bring it over here, it will become positive. So I'll bring this term over here and I will bring this 104 over here. So this will become positive. So we can write it as delta H for CCl will be equals to 1899 minus 1673 and this will go over there to form 104. Okay. So now first we have to subtract this, then we have to add 104. So let us do it. So 9 minus 3 is 6, 9 minus 7 is 2, 8 minus 6 is 2, 1 minus 1 is 0 plus 104. So this will come out to be 6 plus 4 is 10, 0, carry 1, 2 plus 1 is 3 and 2 and 1 3. Is 330 kilojoules per mole. This is your answer. 330 kilojoules per mole. So delta H for CCl is 330 kilojoules per mole. So this is your answer.
Okay, is it easy? So in this way you can solve out any numericals of this type where all the bond enthalpies are given and you have been asked to find out any one of them, or the bond enthalpies of different bonds have been given and you may be asked to find out the bond enthalpy for a particular reaction. Okay, any type of the numerical can come. So you may use the method like this and first try to write the reaction in the structural form and then count out the number of the bonds. So then there will be no chance of getting mistake. So this is all about today's video. Hope you all have understood, and if you have any query regarding any topic in this complete chapter, you may ask me in my comment box, and those who are studying in my class only, they can WhatsApp me or they can call me personally. Okay, so we'll meet in the next video with a very important topic of Hayes' law, and till then, thank you, bye bye.